إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی بات کا آغاز سورہ النور کی کچھ آیات سے کرتی ہوں سورہ النور آیت نمبر 34 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل فرما دی اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے اور متقین کے لیے ان آیات میں نصیحت ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق فیہا مصباح جس میں ایک چراغ ہو المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ اور وہ شیشہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو مبارکۃ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار جیسے اس کا تیل خود بخود ہی سلگ اٹھے گا اگرچہ اسے آگ نے مس نہ کیا ہو نور علی نور وہ ہے نور علی نور نور کے اوپر ایک نور روشنی کے اوپر ایک روشنی یہد اللہ لنورہ من یشاء اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو وہ چاہتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور وہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت سی مثالیں بیان کرتا ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ اور یہ چراغ یہ قندیلیں ان گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال وہاں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں رجال وہ لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے یعنی قیامت قائم ہو جائے گی لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے اعمال کی بہترین جزا ان کو عطا کرے ویزیدہم من فضلہ اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ مزید عطا کرے واللہ یرزق من یشاء اور اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے بغیر حساب جس کو وہ چاہتا ہے
तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता फरमा देता है। तो ये आयत सूरह अन-नूर की जिसमें नूर का ज़िक्र है, जिसमें अल्लाह की आयत का ज़िक्र है, आयत बय्यिनात का ज़िक्र है और वो घर जहाँ पर अल्लाह की आयत पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं, इन आयत में घरों से मुराद वो मस्जिदें हैं, जहाँ जाने और उठने-बैठने के खुसूसी आदाब हैं, इबादत के अजर व सवाब है। और इसके अलावा एक और तफ़सीर में फ़रमाया गया कि घरों से मुराद अहले ईमान के घर हैं और एक और तफ़सीर में इसकी बताई गई वज़ाहत कि इन घरों से मुराद अहले ईमान के सीने हैं, जिनकी यहाँ पर अल्लाह ताला ने मिसाल दी है। वो घर कौन-से हैं जिसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसे चाहिए कि बैठने से पहले 2 रकातें नमाज़ पढ़ ले। यानी मस्जिद में दाखिल हो जाए तो 2 रकात नमाज़ पढ़े। और दूसरी रिवायत में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स का जमात के साथ नमाज़ अदा करने का अजर व सवाब उसके घर या बाज़ार में नमाज़ अदा करने से 25 गुना ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि आदमी जब अच्छी तरह से वज़ू करके नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है, तो वो जो कदम भी उठाता है उसके बदले में उसका एक दर्जा बुलंद होता है, उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है। फिर वो जब नमाज़ पढ़ता है और जब तक वो अपनी नमाज़ की जगह पर रहता है, फ़रिश्ते अल्लाह ताला से उसके लिए दुआए रहमत और दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं कि या अल्लाह इस पर रहम फ़रमा, या अल्लाह इस पर मेहरबानी फ़रमा। और तुम में से जो कोई जब तक नमाज़ के इंतज़ार में रहता है, गोया वो हालत नमाज़ ही में रहता है, यानी अल्लाह की रहमत में ही रहता है। तो ये तफ़सीर बताई कि ये जो बुयूतुन जो वो घर जिसमें अल्लाह का ज़िक्र बुलंद किया जाता है, अल्लाह का नाम बुलंद किया जाता है, तो इससे मुराद मस्जिदें हैं और अहले ईमान के घर हैं और अहले ईमान के दिल हैं, जिनमें अल्लाह का ज़िक्र बुलंद किया जाता है। तो ये वो आयत जिनको हमने खोल-खोल कर वज़ाहत से तुम्हारे लिए बयान किया। तो इन आयत में, इस कुरान की आयत में अल्लाह ताला ने पिछले लोगों की, पिछले कौमों के हालात भी बताए और जो तक़वा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह से डर कर अल्लाह के मना करदा कामों से बच-बच कर अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, जो परहेज़गारी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं और अल्लाह से डरते हुए गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, ऐसी परहेज़गारी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। मादर-पिदर आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुज़ारते कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं। तो ये मुत्तकी लोग हैं, जिनको इस कुरान से नसीहत मिलेगी, जिनको इस कुरान से सबक मिलेगा, हिदायत मिलेगी। और फिर अल्लाह ताला ने अपने नूर की मिसाल दी। अल्लाह का नूर ज़मीन और आसमान में फैला हुआ है। अल्लाह ही है जो आसमान और ज़मीन का नूर है। यानी जिससे हिदायत मिलती है, जिससे रहमत मिलती है, जिससे रिज़्क मिलता है, जो ज़िंदगी का मंबा है, जो हिकमत का मंबा है, जो इल्म का मंबा है, अल्लाह ताला की ज़ात अल्लाह ताला अपनी ज़ात और अपनी तमाम सिफ़ात के साथ नूर का ज़रिया है, सरचश्मा नूर है। असल नूर वहाँ से मिलता है। अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसे है जैसे एक ताक जैसे पुराने ज़माने में घरों में दीवारों में चिराग रखने के लिए एक ताकचा बनाया जाता था। एक खाली जगह एक बनाई जाती थी जिसमें चिराग रखा जाता था। जिस तरह हम लालटेन जलाते हैं ना, तो वो लालटेन या वो दिया जलाकर उसके अंदर रख दिया जाता था। उससे ये होता था कि दिए की रोशनी दूर-दूर नहीं फैलती थी बल्कि उसी जगह पर कॉन्सन्ट्रेट करती थी और वो जिस जगह पे आपको चाहिए होती थी, रोशनी की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर ज़्यादा रोशनी होती थी। वरना अगर खुली जगह पर रख दिया जाए चिराग जलाकर, तो उसकी रोशनी फिर पूरे कमरे में फैलेगी और वो बहुत मांद हो जाएगी। लेकिन एक ख़ास जगह पर रखने से, एक ताक के अंदर रखने से, उसकी रोशनी उसी जगह पर आपको ज़्यादा मिलेगी जहाँ आपको ज़रूरत होती है। तो पुराने ज़माने में एक ताक बनाया जाता था, जिसमें एक चिराग था और वो चिराग अगर शीशे की कंदील में हो, जैसे एक लालटेन में होता है और वो शीशा ऐसे हो जैसे चमकता सितारा, यानी बहुत साफ और रोशन चमकदार शीशा अगर एक चिराग के ऊपर रख दिया जाए और फिर वो चिराग जिस तेल से जलता है, वो तेल ना शर्क़ी है ना ग़रबी है, बल्कि एक बाबरकत तेल है। मुराद ये है कि वो जो तालीमात हैं वो जो नूर है, यहाँ पर नूर कहा जा रहा है कुरान की तालीमात को। यहाँ नूर कहा जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली हिदायत के नूर को। तो जब ये नूर एक मोमिन के दिल में उतरता है, तो मोमिन के सीने को यहाँ ताक से तशबीह दी गई है। जिन लोगों ने पुराने घर बने हुए देखे हैं ना, उनको पता होगा कि ताक की शक्ल ऐसी ही है जैसे इंसान के सीने की बनती है। जो रिब केज बनता है ना, वो ऐसा ही है और हमारा दिल हमारे सीने के अंदर इसी तरह रखा हुआ है जैसे एक चिराग
आपने जलाकर अपने ताक के अंदर रखा हो। तो वो जिस तेल से जलता है, यानी वो दिया जो वो जब हमारा दिल है, वो जिस नूर से जलता है, वो है नूर इलाही। वो है अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया नूर हिदायत, वो है नूर मारिफत। तो जिस इंसान का दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर होता है, फिर वो मशरिक में रहे या मगरिब में रहे, दुनिया के किसी कोने में भी रहे, वो किसी भी मुल्क में जाकर अल्लाह के नूर से दूर नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह का नूर अपने दिल में हर वक़्त रखता है। यानी किसी भी दुनिया के कोने में चला जाए, वो अपने लिए अल्लाह के दीन को ही अपने लिए नूर समझता है और उसी की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करता है। अब ऐसा नहीं होता कि वो अगर मशरिक़ में है, अगर वो पाकिस्तान में है, वो इंडिया में अपने मुल्क में है तो वो दीन पर बाअमल है और अगर वो अमेरिका या यूरोप चला जाएगा तो उससे दीन जो है वो हट जाएगा और लोग जैसे कहते हैं कि जैसा देश और वैसा भेष, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अल्लाह का दीन, अल्लाह का नूर हर जगह हमारे लिए बाइस रहमत है, बाइस हिदायत है। तो जो जो लोग खालिस अल्लाह के दीन के ऊपर कायम रहते हैं, तो वो अपने लिए इस नूर को हासिल करने के लिए उसी उन्हीं आयात से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिन आयात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत में नाज़िल फ़रमाया है, जिसमें हर चीज़ की वज़ाहत कर दी गई। हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में मुकम्मल तरीन वज़ाहत कर दी कि कौन-सा काम कैसे करना है और कौन-सा कैसे नहीं करना है, किन कामों से बचना है, मुकम्मल हिदायत अता कर दी। वो तेल जिससे ये जलता है, वो खुद ब खुद सुलग उठेगा अगरचे उसे आग भी ना छुए। यानी वो हर वक़्त अल्लाह के दीन से फ़ैज़याब होने के लिए तड़प रखता है, तलब रखता है। उसको छोटी-सी बात भी दीन के बारे में पता चलती है, तो वो उसको समझता है और उसके ऊपर अमल करने के लिए लपकता है। जैसे कोई भी तेल उसके करीब अगर आग जलाई जाए, तो तेल आग को खुद पकड़ लेता है। आपको आग को बहुत करीब नहीं लाना पड़ता तेल के। तो जिस तरह तेल आग पकड़ने के लिए खुद आगे बढ़ता है, इसी तरह से एक मोमिन की सिफ़त होती है कि उसको अल्लाह की बात जहाँ मिलती है, वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी तलब रखता है, उसके लिए आगे जस्तजू करता है और बस अल्लाह की बात उसको सुनाने की देर है कि वो उसको लपक कर ले लेता है। वो सोचता नहीं है कि इसमें मेरा फ़ायदा और नुकसान क्या है, उसको सिर्फ़ ये है कि ये अल्लाह की बात है और मेरे लिए यही नूर है, मेरे लिए यही रहमत है और वो उसके ऊपर अमल करने के लिए तगोदो करता है, जस्तजू करता है, नूरुन अला नूर। तो ये है नूर के ऊपर एक नूर, यानी एक तो वो रोशनी जो कुरान हमें दे रहा है और दूसरी वो तलब जो एक मोमिन के दिल के अंदर है कि मैं आगे बढ़कर उसको हासिल कर लूँ, मैं आगे बढ़कर उसको पा लूँ। तो वो घर जिसकी यहाँ पर वज़ाहत की गई, वो घर 3 चीज़ों को कहा गया। नंबर 1 मस्जिदें, जो अहले ईमान के लिए एक शायर की जगह रखती है, इबादत की जगह। वहाँ पर तमाम अहले ईमान जमा होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के नूर में से नूर हासिल करते हैं। वहाँ इस्लाम की तालीमात होती हैं, वहाँ कुरान और सुन्नत पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। तो इंसान उस नूर को अपने दिल में हासिल करता है और फिर उस इल्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है, उस नूर की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के फैसले करता है। तो ये है नूरुन अला नूर। तो जो अल्लाह के घर में जाता है, वो अल्लाह के नूर से हिस्सा पा लेता है और जो मोमिन है अहले ईमान, उनके घरों में अल्लाह का नूर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब हम कुरान पढ़ते हैं अपने घरों में, तो अल्लाह का नूर बरसता है और फिर इसी तरह एक अहले ईमान के दिल में अल्लाह ताला का नूर कैसे छलकता है कि वो हर वक़्त अल्लाह के करीब रहने की कोशिश करता है, वो अल्लाह की मारिफत हासिल करने की कोशिश करता है, वो अल्लाह के दीन को सीखने की कोशिश करता है। जैसे ही उसको अल्लाह की कोई बात मिलती है, कोई हदीस मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में या कुरान की आयत के बारे में कोई भी बात उसको नहीं समझ आती है, वो उसको फ़ौरन लेता है, फ़ौरन उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता है और आगे पहुँचाने की कोशिश करता है। तो ये है वो नूर, जिसको लेने के लिए एक मोमिन दिल तड़पता है, लपकता है, लेकिन ये वो नूर है, जिसको बुझाने के लिए कुफ़ार और मुनाफ़िकीन और फ़ासिकीन इस नूर को बुझाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को इस नूर को बढ़ाना है और जो लोग इस नूर को बुझाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों का मुकाबला करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना है।
اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ان تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، جو اللہ کی تعلیم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام الہامی کتابوں میں سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ عزت اور شرف والی کتاب، عظمت اور فضیلت والی کتاب، جو خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت اور حکمت سے لبریز، ہر شک و شبہ سے پاک، حق اور باطل میں بالکل فرق کر دینے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی، اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینے والی، اور جو لوگ بھی اس کتاب کا، اس کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو جہنم سے ڈرانے والی۔ یہ وہ نعمت عظیم جو بنی انسان کو دی گئی، قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اب ہم دیکھتے ہیں جس رات میں یہ کلام پاک نازل ہوا، اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جس مہینے میں نازل ہوئی، وہ مہینہ سب سے افضل رمضان کا مہینہ ہو گیا۔ یہ کتاب جس شہر میں نازل ہوئی، مکہ اور مدینہ، وہ باقی پوری دنیا کے لیے ام القریٰ کہلائے، یعنی بستیوں کی ماں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ نبی امام الانبیاء کہلائے۔ معراج شریف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی تھی بیت المقدس میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جس امت کی طرف نازل کی گئی، وہ امت سب امتوں کی سردار، امت مسلم، جو کہ میں اور آپ ہیں۔ تو یہ عظمت والی کتاب، جو کوئی بھی اس کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑ لے گا نا، وہ بھی اتنا ہی عظیم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ روشنی جس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ ہے وہ اللہ کا نور جس کو پانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی ہے۔ دیکھیے، قرآن کی فضیلت کے لیے اگر سورہ القدر کی یہ آیات ہی نازل ہو گئی ہوتی نا، تو تب بھی قرآن کی عظمت و فضیلت کے لیے کافی تھی۔ لیکن قرآن کی فضائل اور فیوز اور برکات جو احادیث میں بیان ہوئے، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سب امت محمدیہ کا ہر فرد اگر ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزار دے، تو اس کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو ہمارے لیے باعث عظمت، باعث شرف، باعث تعظیم قرار دیا۔ سب سے پہلے حدیث سورہ صحیح بخاری کی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی امت مسلمہ میں سے اگر بہترین لوگ دیکھے جائیں تو وہ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو خود بھی سیکھتے ہیں اور آگے بھی سکھاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ پڑھ کے آگے پہنچا دیتے ہیں، بلکہ خود بھی بعمل رہتے ہیں، اپنی نسلوں کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، اور اپنے مرنے سے پہلے اگلی جنریشن تک، اپنی آل اولاد تک، اپنے خاندان تک یہ پیغام پہنچا کے جاتے ہیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیتے ہیں، تو پھر ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ نور جو بڑھتا رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح زمین پر ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آسمان پر ہمیں کچھ روشن حصے نظر آتے ہیں آسمان میں، جن کو ہم ستارے کہتے ہیں۔ کچھ ایریاز ہوتے ہیں جو کہ روشن ہوتے ہیں، تو جب آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو ان کو بھی پوری زمین اندھیرے میں نظر آتی ہے، لیکن کسی جگہ پر ان کو روشنی نظر آتی ہے۔ تو آسمان پر اگر کھڑے ہوں تو زمین کے اوپر بھی ایسی ہی روشنی نظر آتی ہے جیسے ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ستارے ہیں نا جو آسمان پر ہیں، لیکن آسمان والوں کے لیے زمین پر کون سے چمکتے ہوئے حصے ہیں زمین کے؟ وہ حصے ہیں زمین کے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر اہل ایمان کے گھر ہیں۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کا یہ نور ایسے اترے کہ آسمان سے ہمارا گھر ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے؟ ہم چاہیں گے نا، یقیناً۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اب تو ہمیں گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر بیٹھے اس نور سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، میرے پاس اگر ایک کینڈل جل رہی ہو، ایک چراغ جل رہا ہو، اور 100 لوگ ایسے ہیں جن کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، میں اگر اپنے چراغ سے ان 100 لوگوں کا چراغ جلا دیتی ہوں نا، تو میرے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوگی،
बल्कि उन 100 चिरागों के जलने से मेरे चिराग की रोशनी भी 100 गुना बढ़ जाएगी। तो ये है वो करने का काम कि जिसके फैलाने से, जिसकी अशाअत से, जिसकी तरवीज से ये हमारा इल्म कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। जब हम आगे और लोगों को बताते हैं, तो हमारा इल्म कम नहीं होता, हमारा नूर कम नहीं होता, बल्कि वो नूरुन अला नूर होता चला जाता है। वो नूर आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ये जो हम किसी के मरने के बाद सितारे पढ़ते हैं ना, वो उसको पहुँचते हैं या नहीं, ये हमें नहीं पता। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अब जिसका दिल मानता है वो पढ़े कुरानों पर कुरान। लेकिन अगर आप सिर्फ़ चंद आयतों पे अमल कर लें, तो फिर जो आपको नूर मिलेगा, वो नूर आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगा और कब्र में भी आपके लिए काफ़ी होगा। अभी हम अहादीस के ज़रिए ये सारी जो है वो तफ़सीलात देखते हैं कि किस तरह कुरान पाक हमारे लिए कब्र में नूर का सबब बनेगा, किस तरह कुरान पाक हमारे लिए पुल सिरात पर सबब बनेगा, रोशनी का सबब बनेगा। किस तरह मीज़ान में जब अमाल का हिसाब-किताब हो रहा होगा, तब कुरान पाक हमारी कैसे मदद करेगा। तो कुरान सीखने वाले, सिखाने वाले अल्लाह के रास्ते में हैं, जन्नत के रास्ते में हैं। इब्न माजा की हदीस है, कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वाले अल्लाह वाले हैं, वो उसके चुने हुए बंदे हैं। तो क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हमें सिलेक्ट कर लें? अल्लाह ताला हमें कबूल कर लें अपने रास्ते में? क्या हम नहीं चाहते कि हमें अल्लाह ताला अपने बंदे कहें? ये हैं अहलुल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अहलुल्लाह कौन होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलुल्लाह वो होते हैं जो अहलुल कुरान होते हैं। तो अहलुल कुरान कौन होते हैं? अहलुल कुरान उन्हीं को कहा गया जो साहिब कुरान है। अहलुल्लाह अहलुल कुरान को कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिसाहिबिल कुरान इक़रा तुम पढ़ो वर्तक़ी और चढ़ते चले जाओ वरत्तिल कमा कुन्त तरतलु फिद दुनिया और तुम इस तरह तिलावत करो जैसे तुम दुनिया में तिलावत किया करते थे यानी आहिस्ता-आहिस्ता, ठहर-ठहर कर, तजवीद के उसूलों के साथ, क़वानीन के साथ, कवाइद के साथ। फ़इन्ना मंज़लतका इंद ख आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा तो बेशक तुम्हारी मंज़िल आखिरी आयत के पास होगी, जो तुम पढ़ोगे। यानी हम जितना आहिस्ता-आहिस्ता ठहर कर पढ़ेंगे, उतना हम जन्नत के आला तरीन मुकाम पर पहुँचेंगे। इब्न माजा ही की एक और हदीस है, कुरान मजीद का इल्म सीखने वालों के लिए ज़मीन और आसमान की हर चीज़, हत्ता कि पानी के अंदर मछलियाँ और बिलों के अंदर मौजूद चींटियाँ, ये भी दुआए मग़फ़िरत करती हैं। अब देखिए कि हम इस पूरी कायनात के अंदर इस तरह मरबूत हो जाते हैं, क्योंकि इंसान और जिन्नात के अलावा हर मखलूक अल्लाह की फ़र्माबरदारी कर रही है, अल्लाह की तस्बीह कर रही है। सिर्फ़ इंसान और जिन्नात हैं, वो चाहें तो तस्बीह करें, इबादत करें और चाहें तो ना करें। चाहे तो नेक अमाल करें, चाहे तो बुरे अमाल करें। तो ये 2 मखलूक़ात हैं जिनको बुराई और नेकी दोनों के ऊपर जो है वो चॉइस दी गई है। फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई है, आज़ादी दी गई है। चाहे तो आप ईमान लाकर नेक लोगों में शामिल हो जाएँ, चाहे तो आप कुफ़्र करके तो शैतानी सफ़ में शामिल हो जाएँ। बाकी तमाम मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह करती हैं और वो उनकी तस्बीह के अंदर ये शामिल होता है कि या अल्लाह जो लोग भी तेरे दीन का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मग़फ़िरत हो और रहमत हो। उनको ये तस्बीहात सिखा दी गई हैं। यानी ये एक ऑटोमैटिक सिस्टम है। जैसे आप पानी को बुलंदी से गिराएँ तो वो खुद ब खुद नीचे उतर जाता है, नीचे गिरता है, नीचे की तरफ आता है। कोई भी चीज़ बुलंदी से फेंके वो खुद ब खुद नीचे की तरफ आती है। इसलिए कि ये कानून है, ये फ़िज़िकल लॉ है। इसी तरह इस कायनात के अंदर हर एक चीज़, हर एक मखलूक उसको अल्लाह ताला ने अपने हिस्से का काम सिखा दिया है और उनकी उन ड्यूटी के अंदर शामिल है कि वो अल्लाह की तस्बीह भी करते हैं। कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करने वाले लोग काबिल रश्क हैं। ये सही बुखारी की हदीस है। कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करने वाला क़यामत के दिन मुक़र्रब फरिश्तों के साथ खड़ा होगा। ये सही मुस्लिम में आता है। सही मुस्लिम ही की एक और हदीस है, कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने वालों पर अल्लाह ताला सकीनत नाज़िल फरमाते हैं, यानी उनके दिल को सुकून होता है। उनके दिल से वो बेचैनी, वो बेकरारी या वो हसद या वो कोई लालच, ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो कुरान पर बाअमल लोग होते हैं।
वो अल्लाह पर भरोसा करने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि अल्लाह मेरे साथ है। अगर मुझ पर आज कोई मुश्किल है, तो मेरी मुश्किल को हल करने वाला मेरा रब मेरे साथ है। मैं तन्हा नहीं हूँ। तो ये चीज़ इंसान के दिल और दिमाग में सकीनत ले आती है। आज अगर हम देखें, हम में से हर इंसान का मसला ये टेंशन, एंग्ज़ायटी, परेशानी क्या है ये? ये टेंशन क्या चीज़ है? ये अल्लाह से दूरी का नाम टेंशन है। जितना-जितना हम अल्लाह और अल्लाह के दीन से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होंगे, समझे हम परेशानियों के गर्दाव में फँस गए। जितना हम अल्लाह और अल्लाह के दीन से करीब होंगे, उतना ही हमारे ऊपर सुकून होगा। सुकूनत, सकीनत, इत्मीनान क़ल्ब, हमारा दिल मुतमईन होगा। अगर कोई नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, वो हमारे नसीब में लिखा था, उस पर सब्र करेंगे। कोई नेमत मिलेगी तो उस पर शुक्र करेंगे। दोनों हालतों में बाइसे अजर होगा, तो हम तो किसी हालत में भी नुकसान में नहीं हैं। फरिश्ते उनकी मजलिस के गिर्द एहतरामन खड़े रहते हैं और एक और हदीस में आता है कि फरिश्ते अपने पर फैला देते हैं उस मजलिस में हाज़िरीन के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, जो कुरान के मजलिस में हाज़िर होते हैं। नीज़ अल्लाह ताला उन लोगों का ज़िक्र फ़ख्र के तौर पर फरिश्तों के सामने करते हैं, अपनी मजलिस में करते हैं कि ये हैं मेरे बंदे, जो मेरे ज़िक्र करने के लिए एक जगह पर जमा हुए। तबरानी में एक हदीस है, कुरान मजीद का एक सिरा अल्लाह के हाथ में और दूसरा अहले ईमान के हाथ में। बस जो लोग भी उसे थामे रखेंगे, वो दुनिया में कभी गुमराह ना होंगे और आखिरत में कभी हलाक ना होंगे। यानी दुनिया में गुमराही से बचना चाहते हैं तो कुरान को पकड़ लें, थाम लें, सीखें और सिखाएँ। आखिरत में अगर हलाकत से बचना चाहते हैं तो भी कुरान ही को पकड़ना होगा। अपनी औलाद को कुरान मजीद की तालीम दिलवाने वाले वालिदैन को क़यामत के दिन 2 ऐसे कीमती लिबास पहनाए जाएँगे, जिनके मुकाबले में दुनिया व मा फ़ीहा की सारी दौलत हक़ीर हो जाएगी, हेच हो जाएगी। कुरान मजीद की तिलावत करने वालों को एक-एक हर्फ पर 10-10 नेकियाँ मिलती हैं। अब अगर एक नेकी की कीमत ₹100 लगा ली जाए, तो फिर 10 नेकियों का मतलब 1000। एक हर्फ पढ़ने पर, अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 बनते हैं। तो आपको एक हर्फ पर ₹100 मिले तो आपके ₹900 बन गए। तो आपको कितना अजर मिलेगा? बेतहाशा, अनगिनत। अब हम देखते हैं कि कुरान मजीद के बेशुमार फ़ज़ाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। सहाबा किराम कुरान मजीद की तिलावत, हिफ्ज़, तदरीस, तालीम, उनके अंदर ऐसा जज़्बा था कि बहुत से सहाबा किराम ने अपनी ज़िंदगियाँ कुरान मजीद के लिए वक़्फ़ कर दी थी। वो हर वक़्त इसको पढ़ते थे, इसके साथ अपने ताल्लुक को मज़बूत रखते थे। अब हम देखते हैं कि सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 155 में है, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और ये किताब जिसको हमने नाज़िल किया है, ये बाबरकत है। बस तुम इसकी पैरवी करो और डरो, डरते हुए रहो, यानी तक़वा इख्तियार करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर हम अल्लाह की रहमत पाना चाहते हैं, तो इस बाबरकत किताब से हमें अपने ताल्लुक को मज़बूत करना होगा। इसी तरह सूरह अल-अनआम ही की आयत नंबर 157, फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमा। तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक दलील रोशन, हिदायत और रहमत आ गई है। सूरह अन-नमल की आयत नंबर 77 में है, व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और बेशक ये कुरान हिदायत का ज़रिया और अहले ईमान के लिए रहमत का ज़रिया है। जो ईमान लाएँगे, जिसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। ईमान वाले ये नहीं जो सिर्फ़ मुँह से कह देंगे हाँ, ये अल्लाह की किताब है। ईमान लाने वालों से मुराद जो कुरान में बयान करदा हलाल करदा चीज़ों को हलाल समझने वाले हों और जो कुरान के मुताबिक हराम करदा चीज़ें उनको हराम समझने वाले हों और इसके हुकूक को अदा करने वाले हों। कुरान के हुकूक ये हैं कि उनको कुरान पर ईमान लाया जाए कि ये अल्लाह की सच्ची किताब है और ये वही किताब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी और हमारे पास जो किताब मौजूद है, मुसहफ मौजूद है, वो वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। इस बात पर ईमान रखना, कोई शक नहीं रखना।
फिर कुरान पाक का अगला हक ये है कि इसके अल्फाज की दुरुस्त अदायगी की जाए, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, ना कि हम पंजाबी में कुरान पढ़ें। कुरान पाक को अरबी लहजे में पढ़ना, ये कुरान पाक का हक है। फिर उसके बाद जब हम सही दुरुस्त अदायगी करने के काबिल हो जाएँ, तो फिर इसका मानी मफ़हूम समझने की कोशिश करें। ये भी कुरान का हक है कि इसको समझा जाए और जब समझ में आने लगे तो फिर इस पर अमल करना। और अगर हमें कुरान की आयत का इल्म हो, कुरान के अहकामात का इल्म हो, लेकिन हम अमल उसके मुखालिफ करेंगे, तो इससे बड़ी कुरान की तौहीन और क्या होगी? कि हम सूद के मुतालिक आयत पढ़ते हैं, हम रिश्वत के मुतालिक आयत पढ़ते हैं, हम झूठ के मुतालिक आयत पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला को ये कितने नापसंद है। लेकिन फिर भी हम ये सारे काम करते हैं, तो क्या ये कुरान पाक की तौहीन नहीं है? क्या तौहीन सिर्फ़ वही है जो काफ़िर करते हैं? क्या विरासत की तक़सीम के बारे में हमने अहकामात नहीं सुने? लेकिन हमारे मुआशरे में कौन है जो विरासत का हक देता है? कितने बाअमल हैं हम? क्या निकाह और तलाक के और शादी और गमी के तमाम मामलात हम कुरान के मुताबिक करते हैं? क्या जब हम कुरान पाक में अल्लाह ताला की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हदीस में पाते हैं, लेकिन हमारा अमल जब उसके मुखालिफ होता है, उसके उलट होता है, तो क्या ये कुरान और सुन्नत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है? क्या हमने कभी सोचा नहीं इस बात पर? काफ़िर तो काफ़िर है, वो तो मानता ही नहीं अल्लाह रसूल को, ना कुरान को। वो तो तौहीन करेगा, जो तौहीन हम कर रहे हैं। क्या ये एक पेरेंट की, एक वालिदैन की तौहीन नहीं है कि आप उनसे मोहब्बत का दावा करें लेकिन उनका कहना ना मानें? ये एक वालिदैन की इंसल्ट है। उससे कहीं बढ़कर कुरान की और कहीं बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहीं बढ़कर अल्लाह की ये इंसल्ट है, तौहीन है कि हम अहकामात पढ़ते हैं और उनसे हम अजर भी हासिल कर लेते हैं, सवाब भी कमा लेते हैं, लेकिन अमल ना करके हम जो गुनाह कमाते हैं वो उसका हिसाब कब होगा? उसका हिसाब जल्द होगा। यहाँ पर अज़ान हो रही है, हम 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। हाँ जी। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान सीखो और अल्लाह ताला से इसके ज़रिए जन्नत का सवाल करो। इससे क़ब्ल कि इस कुरान को ऐसे लोग सीखें, जो इसके ज़रिए दुनिया तलब करें। क्योंकि कुरान को 3 किस्म के लोग सीखते हैं। नंबर 1 वो लोग जो इसके ज़रिए फ़ख्र करते हैं कि हम बड़ा कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, दूसरों पर फ़ख्र जताते हैं। दूसरे वो लोग जो इसके ज़रिए लोगों के अमवाल नाहक खाते हैं। यानी कुरान की तालीमात बज़ाहिर वो कुरान पढ़ रहे, पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन लोगों से उनका माल खा रहे होते हैं। खुद कुछ कमाते खाते नहीं हैं और हम देखें हमारा पूरा मुआशरा भरा हुआ है ऐसे लोगों से, जो खुद कोई काम नहीं करते, सिर्फ़ कुरान के लिए वो कहते हैं कि हमने अपने आप को वक़्फ़ किया हुआ है और उसके ऊपर भी वो सिर्फ़ नाज़रा पढ़ाते हैं, आपको कोई तालीम नहीं देते। आपको कोई अच्छे-बुरे की तमीज़ नहीं देते, आपको कोई अख़लाक नहीं सिखाते, तालीम नहीं देते, सिर्फ़ कुरान पढ़ना सिखाते हैं और उसके बदले में वो बैठ कर खाते हैं और मफ़ादात हासिल करते हैं। तीसरे वो लोग जो इसको अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो हमें अल्लाह ताला के लिए इस कुरान पाक को पढ़ना है और पढ़ाना है, सीखना है और सिखाना है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 में है, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत और दिलों की बीमारियों के लिए शिफ़ा आ गई है। नसीहत, सबक, नसीहत क्या चीज़ होती है? एडवाइस क्या चीज़ होती है? क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हम अपने बच्चे को जब कोई नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं? ये काम अच्छे हैं, ये करो। ये काम बुरे हैं, ये नहीं करो। इसी को नसीहत कहते हैं और कुरान सरासर नसीहत है और दिलों की बीमारियों के लिए शिफ़ा है। तो दिल की बीमारी, हर गुनाह दिल की बीमारी है।
हसद, बुग़्ज़, कीना, दिल में दूसरों के लिए दुश्मनी रखना, ग़ीबत करना, किब्र, उजुब, अपने आप को दूसरों से बढ़कर समझना, किब्र यानी तकब्बुर, ये सब क्या है? ये दिलों की बीमारी है। हसद, इन सारी बीमारियों का हल कुरान में है। याद रखें कि हमारे तमाम जिस्मानी और रूहानी अमराज़ का हल कुरान में है। जब तक हम इसको समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमारे दिल के कीने दूर नहीं होंगे। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुल ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। हम कुरान में जो कुछ भी नाज़िल करते हैं, वो अहले ईमान के लिए शिफ़ा और रहमत है, मगर ज़ालिमों के लिए ये कुरान खसारे के अलावा किसी चीज़ में इज़ाफ़ा नहीं करता। ज़ालिम वो होते हैं, जो हक़दार को उसका हक़ नहीं देते। तो जो कुरान का हक़ अदा नहीं करते, वो ज़ालिम हैं। हम भी अगर कुरान का हक़ अदा नहीं करेंगे, हम भी ज़ालिम होंगे। इसलिए यहाँ काफ़िरीन का लफ़्ज़ नहीं आया, ज़ालिमीन का लफ़्ज़ आया है। हम में से जो कोई भी कुरान को गलत पढ़ता है, अपनी तस्हीह नहीं करता, जो कोई भी इसके मुताबिक अमल नहीं करता, सिर्फ़ कुरान को रट्टे मार के पढ़ लेने से आपका अमल नहीं बदलेगा जब तक हमें बात समझ ना आए। अब देखिए पुराने ज़माने में जब बहुत अ, कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे, तो अगर किसी माँ का बेटा या कोई रिश्तेदार किसी दूसरी जगह काम कारोबार के लिए चला जाता था और वहाँ से कोई खत लिखता था, या बेटियाँ जैसे शादी करके दूसरे शहरों में चली जाती थी, फिर वहाँ से खत लिखती थी और माँओं को खत पढ़ना नहीं आता था। तो वो पागलों की तरह पूरे गाँव में, पूरी आबादी में चक्कर लगाती थी कि कोई हमें लिखने पढ़ने वाला मिल जाए कि वो मुझे बता दे मेरे इस खत में क्या लिखा है। मैं ज़ाहिर है इंसान बेचैन होता है कि इसके अंदर क्या लिखा है, मुझे पता होना चाहिए इसके अंदर क्या लिखा है। तो हमारे रब का पैगाम हमारे नाम आया है। हमारे दिल में कोई बेचैनी नहीं कि हम ये जानने की कोशिश करें कि इसमें क्या लिखा है और मेरे लिए इसमें क्या मैसेज है। हालाँकि पुराने ज़माने में जो लोग भी खत वगैरह लिखते थे, बस वो ज़्यादा से ज़्यादा खैरियत ही भेजते थे। इसलिए कि कोई अहम खबर की वजह से मैं कल आ रहा हूँ या परसों आ रहा हूँ, इस तरह का कोई प्रोग्राम वो बता नहीं सकते थे। इसलिए कि खत कई-कई महीनों के बाद पहुँचते थे। बस खैर खैरियत का खत होता था, कोई ख़ास बात उसमें होती ही नहीं थी। तो इसके बावजूद वो बेचैन होते थे। लेकिन क्या हम अल्लाह के इस पैगाम को एक एक उस माँ की तरह उतनी सी बेचैनी भी महसूस नहीं करते? हम जानने की आज तक कोशिश ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने हमसे क्या चाहा है? वो हमें कैसा इंसान बनाना चाहते हैं? तो कुरान मजीद रूहानी बीमारियों का उसके लिए शिफ़ा है। इसी तरह सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 44 में भी है। कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफ़ाउन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए हिदायत का ज़रिया और शिफ़ा का ज़रिया है। तो तमाम रूहानी बीमारियाँ, चाहे वो शिर्क है, कुफ़्र है, निफ़ाक़ है, रियाकारी है, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, सबके लिए शिफ़ा है। अब देखिए कि मुख्तलिफ़ शैतानी वसवसों से बचने के लिए, नज़र बद से बचने के लिए, तमाम बीमारियों से बचने के लिए, जुनून, मिर्गी, साया वग़ैरह हो जाए, ज़हरीले जानवर के काटने से, इन तमाम चीज़ों का इलाज या जादू से शिफ़ा, इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ कुरान पाक की आयत बताई कि हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला की आयत में बहुत असर है, तासीर है। तो जादू इवन कि सबसे बड़ी जो तकलीफ़ होती है वो जादू का असर का अगर हो जाए किसी के ऊपर तो उसके लिए भी पुरानी आयत से ही हल बताया गया है, इलाज बताया गया है। और शैतानी वसवसों से भी और बाकी भी कुरानी आयत और सूरतें पढ़कर अल्लाह से मदद और पनाह तलब की जाए। इसके लिए तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह अल-फातिहा, सूरह अल-बक़रा, सूरह अल-बक़रा की आखिरी 2 आयत, आयतुल कुर्सी, सूरह अल-इख़लास, सूरह अल-फलक और अन-नास। ये एक बाकायदा निसाब दे दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के लिए इन तमाम सूरतों और आयत के जो फ़ज़ाइल और फ़वाइद बताए हैं, वो इतने यकीनी हैं जितनी हमारी मौत यकीनी है। दवाइयों से बीमारियों का इलाज ज़रूर करना चाहिए, लेकिन साथ-साथ हमें इन आयत को पढ़ना अपने रूटीन में रखना चाहिए, क्योंकि ये आयत हम सुबह-शाम की दुआओं में भी पढ़ते हैं। कुरान मजीद हमारे लिए सरतासर रहमत है।
सूरह नमल में है व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और सूरह लुक़मान में भी यही अल्फाज हैं हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन। कुरान मजीद है हिदायत और रहमत है नेक अमल करने वालों के लिए। अब हर इंसान इस दुनिया में बाइज़्ज़त, मुतमईन और खुशहाल ज़िंदगी बसर करने के लिए अल्लाह ताला की रहमत का ही मोहताज है। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। तो इस दुनिया में अल्लाह की रहमत पाने का ज़रिया अल्लाह के दीन से जुड़ जाना है। इस दुनिया के बाद आलम बरज़ख यानी मौत के बाद जब हम कब्र में रहते हैं, उसमें भी हर इंसान अज़ाब से बचने और आराम की नींद सोने के लिए अल्लाह ताला की रहमत का ही मोहताज होगा। उस वक़्त भी जो उसके पास अल्लाह की रहमत आएगी, वो ये कुरान ही की शक्ल में आएगी। बरज़ख के बाद क़यामत के दिन जहन्नुम से बचने और जन्नत में दाखिल होने के लिए भी हर इंसान अल्लाह ताला की रहमत का ही मोहताज होगा। दुनिया में भी, बरज़ख में भी यानी कब्र की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, तीनों जगह अगर हम बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत के मोहताज हैं हम, और वो रहमत हमें कुरान की शक्ल में मिलेगी। बरज़ख की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि किस तरह हम अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। दुनिया की निस्बत उस ज़िंदगी में हमें अल्लाह ताला की रहमत की ज़्यादा ज़रूरत होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब मैयत की कब्र में तदफ़ीन की जाती है तो उसके पास 2 फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं, वो दरअसल 3 सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मन नबियुका, तेरा नबी कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन कौन-सा है? तो पहले सवाल के जवाब में मोमिन कहता है रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। दूसरे सवाल के जवाब में मोमिन कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल मेरे नबी हैं। तीसरे सवाल के जवाब में मोमिन कहता है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इन तीनों सवालों के जवाब के बाद फरिश्ते अहले ईमान से पूछते हैं वमा युदरीका, यानी चौथा सवाल भी पूछते हैं, तुझे इन सवालों का जवाब कैसे मालूम हुआ? तो मोमिन आदमी कहता है क़राअतु किताब अल्लाहि, मैंने अल्लाह तो इस चौथे सवाल के जवाब में मोमिन आदमी कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, यानी कुरान पढ़ा और उस पर ईमान लाया। फ़आमनतु बिही, उस पर ईमान लाया, वसद्दक़्तु, और मैंने उसकी तस्दीक की, यानी किताबुल्लाह में पढ़कर इन सवालों के जवाब हासिल किए। तो यानी अल्लाह ताला ने जो क्वेश्चन पेपर है वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, और जो किताब है वो भी दे दी हमारे हाथ में। आप देखिए कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर के साथ ही किताब भी दे दी जाए कि अब आप यहाँ से देख-देख के आंसर लिखते जाएँ, तो हम कहेंगे कि ये उस्ताद, ये एग्ज़ामिनर कितना मेहरबान है। तो आप बताएँ कि जो अल्लाह इम्तिहान ले रहा है इस दुनिया में, किताब भी हमारे हाथ में पकड़ा रहा है, उससे बड़ा मेहरबान कोई होगा? इससे बड़ी रहमत कोई और होगी? तो कब्र में मुनकर नकीर के सवालों में कामयाबी सिर्फ़ उसी को हासिल होगी जो कुरान मजीद पर ईमान लाया, उसे पढ़ा, समझा और उस पर अमल किया। यूँ कुरान बरज़ख में भी अहले ईमान के लिए रहमत साबित होगा। लम्हा भर के लिए सोच, जब आदमी है, मोमिन आदमी फरिश्तों के जवाब में ये कहेगा, मैं कुरान पर ईमान लाया, उसकी तस्दीक की, उसकी तिलावत की, तो कब्र में उसकी खुशी का ठिकाना क्या होगा कि मैंने सवालों के जवाब दुरुस्त दे दिए, वो कामयाब हो जाएगा। अगर मोमिन आदमी से दुनिया में कोई ऐसा गुनाह सरज़द हुआ होगा जिस पर कब्र में अज़ाब हो सकता है, तो उसके लिए कुरान पर ईमान लाना, उसकी तिलावत करना, उस पर अमल करना बाइस रहमत साबित होगा। कुरान मजीद अज़ाब के फरिश्तों के सामने रुकावट बन जाएगा। ख़ास तौर पर सूरह अल-मुल्क के बारे में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अज़ाब कब्र से रुकावट है। इसी तरह फरमाया तिलावत कुरान मोमिन आदमी को अज़ाब कब्र से महफूज़ रखने वाला अमल है। न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जब कब्र में दफ़न किया जाता है, और देखिए कि ये वक़्त मेरे और आपके ऊपर सबके ऊपर आने वाला है। आज हम दूसरों की तदफ़ीन की खबरें सुनते हैं, दूसरों की मौत की खबरें सुनते हैं, क्या हमारी कभी खबर नहीं आएगी? एक दिन हमें भी कब्र में रखा जाएगा। तो जब आदमी को कब्र में दफ़न किया जाता है तो फ़रिश्ता सर की तरफ से अज़ाब देने के लिए आता है। तो तिलावत कुरान उसे दूर हटा देती है। जब फ़रिश्ता सामने से आता है तो सबका खैरात उसे दूर कर देते हैं। जब फ़रिश्ता पाँव की तरफ से आता है तो मस्जिद की तरफ चलकर जाना उसे दूर कर देता है।
یوں برزخ میں بھی قرآن مجید مومن آدمی کے لیے بہت بڑی رحمت ثابت ہوتا ہے. اسی طرح آخرت کی زندگی میں جس طرح دنیا میں اور برزخ کی زندگی میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح اس کی ضرورت ہے. ہم سب سے زیادہ محتاج ہوں گے اس وقت. یہ رحمت بھی ہمیں قرآن کے ذریعے ہی حاصل ہوگی. میدان حشر ہو یا میزان، جب ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، یا پل صراط ہو یا جنت میں داخلہ، ہر جگہ قرآن مجید اپنے حاملین کے لیے رحمت کا ایک پیغام بن کر آئے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ مغفرت کے لیے سفارش، قرآن ہماری مغفرت کے لیے سفارش کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. سفارش کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، جس میں سے سورہ الملک بھی ہے. سورہ الملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے مسلسل سفارش کرتی رہے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا. یہ احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. سورہ البقرہ اور آل عمران کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی. تو یہ تو جھگڑا کرنا یا بات کرنا یا سفارش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور امر سے ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. جو بھی قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بخشش، مغفرت کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے تین باتوں کا مطالبہ کرے گا. کون؟ قرآن مجید، جن کا ذکر صحیح حدیث میں آتا ہے. وہ قرآن کہے گا یا اللہ اسے عزت کا لباس عطا فرما. چنانچہ قرآن مجید کی سفارش پر قاری کو، قرآن پڑھنے والے کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن مجید دوبارہ قاری کے لیے درخواست کرے گا، چنانچہ دوسری مرتبہ اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا. پھر تیسری بار مطالبہ کرے گا اور یہ کہے گا کہ یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا. تو اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ بھی پورے کر لیں گے اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. مما یہ کہہ رہا میرے پاس آؤ، یا کے پاس جانا. اب کیا کریں یا کے پاس جانا. اسی طرح قرآن پاک کا یہ مطالبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے اور ہم سے راضی ہو جائیں گے. اچھا کوئی بات. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا قاری، یعنی جو درست قرات کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اسی طرح قاری کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزت و تکریم عطا فرمائیں گے، جیسے ہم نے پہلے ایک حدیث پڑھی. ایک اور حدیث ہے جو اس سے تھوڑی سی اور وضاحت سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس والدین سے عزت و تکریم کا سلوک کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قاری کی مغفرت اور تکریم کے بعد اس قرآن کے پڑھنے والے قاری کو کے والدین کو دو ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا مافیا کی ساری دولت ہیچ ہوگی. والدین تعجب سے پوچھیں گے یا اللہ ہماری یہ عزت افزائی کس عمل کے بدلے میں ہوئی؟ تو آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھانے کے بدلے میں. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے نا، اللہم اجعلنا منہم بفضلہ ومنہ وکرمہ. اے اللہ ہمیں بھی تو ان میں سے، ایسے لوگوں میں سے بنا دے جو اپنی اولاد کو اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کے احسان سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے والدین میں سے بنا دے جو اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے. تو ہماری زندگی کے ان تینوں ادوار میں آپ دیکھیں بہت ساری احادیث میں وضاحت کی گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے دنیا کی زندگی میں، پھر ہم کیا کریں؟ اس سے نقصان کیا ہے؟ فائدے تو ہم نے دیکھ لیے. اگر ہم قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کی طرف دھیان نہیں کرتے، اپنا وقت نہیں نکالتے، اپنے ہی گھر بار اور بچوں میں اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح قرآن پاک
तीनों ज़िंदगियों में हमारे लिए कुरान पढ़ने वालों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह कुरान पाक से एराज़ करने वाले, कुरान से दूर रहने वाले लोगों के लिए इन तीनों ज़िंदगियों में बहुत बड़ी मुश्किलात सामने आने वाली हैं। तकलीफ़देह ज़िंदगी होगी, तो सबसे पहले हम दुनिया की ज़िंदगी में देखते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमन अअरदा अन ज़िक्री, सूरह तौहा की आयत नंबर 124 है। जो शख्स हमारे ज़िक्र यानी कुरान से मुँह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो उसके लिए तकलीफ़देह ज़िंदगी होगी। यानी दुनिया की ज़िंदगी में आपका गुज़र औक़ात बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप अगर देखें हमारे मुआशरे में इस वक़्त कौन है जो ये कह रहा है कि मैं खुशहाल हूँ? जो लाखों भी कमा रहा है वो भी कहता है गुज़ारा मुश्किल से होता है। इतनी महँगाई हो गई, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा लोग मुश्किलात का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कमाई में बरकत नहीं रही, क्योंकि हमारे वक़्त में बरकत नहीं रही, क्योंकि हमारी सलाहियतों में बरकत नहीं। तो जब बरकत उठा ली जाती है तो कितना भी होगा तो पूरा नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि हम दीन से मुँह मोड़े हुए हैं। हम अल्लाह के दीन को सिर्फ़ कबूल करते हैं और मानते हैं और ज़ुबान की हद तक, दीन हमारे दिल तक पहुँचा ही नहीं है। अल्लाह के हलाल और हराम की कोई तमीज़ हमारे अंदर मौजूद नहीं रही। तो जब हमारे रिज़्क में हराम शामिल होगा, तो फिर हमारे अमाल में और हमारी इबादत में कोई बरकत नहीं होगी, कोई कबूलियत नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा हमारे पास अगर असबाब और वसाइल भी होंगे, तो फिर भी हम तकलीफ़देह ज़िंदगी गुज़ारेंगे। महज़ फ़क्र फ़ाक़र मोहताजी की ज़िंदगी नहीं, बल्कि ऐसी ज़िंदगी, ये तकलीफ़देह ज़िंदगी से मुराद क्या है? जिसमें इंसान को कभी सुकून और चैन नसीब ना हो। ढेरों मालो-दौलत होने के बावजूद, आला से आला मनसब, ओहदा होने के बावजूद, इंसान के लिए जीना हराम हो जाए। और इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। अल्लाह ताला बहुत सारी आज़माइशों में डाल सकते हैं। सिर्फ़ मालो-दौलत का कम होना ही हमारे लिए आज़माइश नहीं है, मालो-दौलत का ज़्यादा होना भी हमारे लिए आज़माइश है। मसलन ऐसी बीमारी का लग जाना, जिससे ज़िंदगी से चैन और सुकून छिन जाए, या औलाद या शौहर और बीवी का नालायक, घर में मियाँ-बीवी के दरमियान बेएतमादी और झगड़े, फितना और फ़साद, मियाँ-बीवी के दरमियान अगर अलहदगी हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। वालिदैन और औलाद के दरमियान या बहन-भाइयों के दरमियान बेएतमादी का आ जाना, ऐसे-ऐसे झगड़ों में, ऐसे-ऐसे मुकद्दमात में फँस जाना कि दिन-रात का सुकून खत्म हो जाए। या फिर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने की ऐसी हवस पैदा हो जाना कि उसे अपनी ज़ात का, अपने बच्चों का, अपने अज़ीज़-ओ-क़रीब का भी होश ना रहे। या बड़े ओहदों को, बड़े-बड़े चीज़ों बड़े-बड़े ओहदों और मनसब को पाने के लिए ऐसी हवस लग जाए कि उस बड़े ओहदे को पाने के लिए इंसान हर चीज़ दाँव पे लगा दे, हलाल-हराम की हर हद को पार कर जाए। ऐसी तकलीफ़देह ज़िंदगी, ऐसी परेशानियाँ जिनमें इंसान कुरान मजीद से एराज़ के नतीजे में मुब्तला होता है। तो ये कुरान मजीद से एराज़ की सज़ा का ये कानून हर फ़र्द के लिए, ख़्वाह कोई बादशाह या कोई फ़कीर है। उनकी मईशत यानी दुनिया की ज़िंदगी और गुज़र-औक़ात बहुत मुश्किल हो जाती है, उनको सुकून नहीं मिलता। अभी पीछे हमने पढ़ा ना कि जो कुरान के ऊपर बाअमल हो गए उनको सकीनत नाज़िल होती है, तो ये बिल्कुल उसके ऑपोज़िट है। उनका दिल हर वक़्त परेशानियों में घिरा रहेगा, कोई ना कोई ख़ौफ़ होगा उनको। अल्लाह ताला का ये कानून हर इंसान के लिए है, तमाम अफ़राद के लिए भी है और अक़वाम के लिए है। जो कौमें बहसीत मजमूई कुरान से गफ़लत बरतती हैं, उसके अहकाम पर अमल नहीं करती, उनकी दुनिया में यही सज़ा है। अब हम देखते हैं हमारे मुल्क में किस कदर हालात ख़राब हो गए, किस कदर खौफ़, बदअमनी है, बेहयाई आप देखें, जराइम की कसरत, फिर आसमानी आफ़तें भी, ज़मीनी आफ़तें भी सारी की सारी शायद हमारे ही मुल्कों में आती हैं, गरीब ममालिक में। तूफ़ान, ज़लज़ले, बीमारियाँ, कहत साली, फिर हमारी सरहदें महफूज़ नहीं, दुश्मन की तरफ से हर वक़्त एक खतरा, कुफ़ार की तरफ से धमकियाँ, साज़िशें, जंगों के हमलों का खतरा। क्या ये सारी बातें कौमी सतह पर एक तकलीफ़देह ज़िंदगी नहीं है? क्या ये मईशतन दनका की निशानदेही नहीं है? दरअसल ये सारी सूरत-ए-हाल एक सज़ा की कैफ़ियत है। याद रखें कि जब हम कुरान पर बाअमल हो जाएँगे, तो ये सज़ा वाली कैफ़ियत भी ख़त्म हो जाएगी, फिर अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। दूसरी बात कुरान मजीद में फरमाया गया कि कुरान से एराज़ की दुनियावी ज़िंदगी में दूसरी सज़ा है कि अल्लाह ताला ऐसे शख़्स या ऐसी कौम पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, जो मरते दम तक उसे गुमराही के रास्ते पर न सिर्फ़ जमाए रखता है, बल्कि उसे इस फ़रेब में मुब्तला रखता है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वही सीधा रास्ता है। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत देखिए 36-37,
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، جو شخص رحمان کے ذکر یعنی قرآن مجید سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِیلِ، وہ پھر شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ فَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ اپنی جگہ پہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ اب ہم یہی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، جو لوگ بھی شرک کر رہے ہیں، کھلے شرک کر رہے ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں، درباروں میں جاتے ہیں، کس کس درجے کے شرک کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں بہت نیک عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح بے شمار بدعات، بے شمار ختم درود اور کون کون سی دعائیں اور کون کون سے وظائف جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں، بلکہ سارا سال کوئی نہ کوئی کام ہمارا چلتا ہی رہتا ہے جو کہ شرک پر مبنی ہے یا پھر بدعت پر مبنی ہے۔ تو اصل دین کی طرف ہمیں آنے ہی نہیں دیتا شیطان، جس پر ہمیں اجر ملنا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 43 میں آتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھا دیے۔ اب دیکھیں ربیع الاول، اس پر اتنا شور ہنگامہ کرنا، اتنا اس کو منانا، اتنا یہ سب کچھ کرنا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جس شہر میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، مدینہ میں ہے، کیا وہاں پر بھی اتنے ہی جلوس نکلتے ہیں؟ کیا وہاں پر بھی لوگ جو ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل بنا کر پورے مدینہ میں گشت کرتے ہیں، جلسے جلوس نکلتے ہیں؟ کیا وہاں پر بھی علیحدہ سے چراغاں کیے جاتے ہیں؟ اور اب نئی اس سال کی تو نئی بدعتیں دیکھیں، یہ جو اس طرح کے جلوس نکالنے والے ہیں، انہوں نے خوبصورت لڑکیوں کو حوروں کے لباس پہنا کر ان کو پورے پورے شہروں میں گھمایا ہے۔ یہ دین ہے؟ کیا یہ تعلیمات ہیں اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ خدا کے لیے کچھ خود اپنی عقل بھی تو استعمال کرنی چاہیے نا۔ کب ہم اس معاشرے سے شرک اور بدعت سے نکلیں گے؟ تو ہم اپنے دین کو جب تک اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے، ہماری نیکیوں کا ہمیں کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے، وہ تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس لیے کہ شیطان ہمیں ہماری گناہوں پر تھپکیاں دیتا ہے، تم بہت اچھا کرتے ہو۔ یہ شیطانی تسلط ہی تھا کہ فرعون اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور موسیٰ علیہ السلام کو گمراہ سمجھتا تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا میرا خیال ہے تم پر جادو کر دیا گیا، تم تو سیدھے رستے سے بھٹکے ہوئے ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہر نبی کے دور میں ان کے کافروں نے اور منکرین حق نے اس دور کے نبی کو باطل پرست کہا کہ تم بہک گئے ہو، تم بھٹک گئے ہو۔ آج بھی قرآن سے اعراض کرنے والوں کو شیطان نے اسی فریب میں مبتلا کیا ہے۔ حجاب کو جہالت قرار دیا جاتا ہے، بے حجابی کو ترقی پسندی۔ آپ دیکھ لیں، آج ہم اپنی کسی شادی کے فنکشن میں اگر ہم حجاب پہن لیں، سارا خاندان ہمارے پیچھے پڑ جائے گا کہ کیا کر رہے ہو، ہماری تصویریں بھی خراب کرو گی۔ مخلوط محفل کو روشن خیالی، مخلوط محفل کا مطلب مرد اور عورت جہاں ایک ہی مجلس کے اندر ہو اور عورتیں پھر بے پردہ بھی ہوں، تو ایسی مجلس میں پھر شیطان کا ہی راج ہوگا نا۔ غیر محرم مردوں اور عورتوں کی میں علیحدگی کو تنگ نظری کی علامت سمجھتے ہیں۔ سطر کو رجت پسندی اور اریانی کو تہذیب جدید، اسقاط حمل کو حقوق انسانی شمار کیا جا رہا ہے، ہم جنس پرستی کو اپنی آزادی تسلیم کرتے ہیں، یہ انسانی حقوق میں شامل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے رقص و سرود، موسیقی کی مجلس، شرم و حیا کو تاریخ خیالی سمجھا جاتا ہے، موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے، شرعی سزاؤں کو غیر مہذب اور فحاشی اور بے حیائی کو اعتدال پسندی سمجھتے، جہاد کو دہشت گردی کو جہاد سمجھتے، یعنی شیطان نے ہماری عقل کو اوندھا کر دیا۔ ذلت اور رسوائی کو رواداری سمجھتے ہیں، عزت و وقار کے راستے کو حماقت۔ در حقیقت یہ لوگ اعراض قرآن کے جرم میں اسی طرح سزا میں مبتلا ہے جس میں شیطان ہر برائی کو نیکی اور نیکی کو برائی بنا کر دکھاتا ہے، حتیٰ کہ تباہی اور ہلاکت کے کنارے پر پہنچا کر شیطان اپنے شاگردوں کو یہی بتاتا رہتا ہے کہ فکر نہ کرو، تم جنت کی وادی میں پہنچ رہے ہو۔ قرآن سے اعراض کی تیسری سزا، قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھنے اور اپنی نسلوں کو قرآن نہ سکھانے کی سزا۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد اور قوموں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتے ہیں، عروج ترقی، بعض لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو من حیث القوم اگر ہم آج دیکھیں تو صحابہ کرام اور ان کے بعد کی 2-4 صدیوں میں اہل ایمان کس طرح عروج پہ پہنچ گئے، پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا، لیکن پھر اس کے بعد
जब कुरान मजीद पर अमल करना तर्क किया तो ज़लील और रुसवा हुए। हम देखते हैं तारीख को पढ़ें, आप इस्लामी तारीख को पढ़ें, कैसे-कैसे हालात गुज़रे। अब बरज़ख की ज़िंदगी में फिर क्या सज़ा होगी? कुरान मजीद से एराज़ की सज़ा दुनिया की ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि बरज़ख में, कब्र की ज़िंदगी में भी। जो शख़्स कुरान मजीद से गाफ़िल रहा, कुरान मजीद न पढ़ा, न समझा, न अमल किया, वो कब्र में मुनकर नकीर के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। फ़रिश्ते उसे डाँट कर पूछेंगे, ला दरैता, तूने जानने की कोशिश नहीं की, वला तलैता, और ना ही तुमने तिलावत की, यानी तुम्हें ये सवालों के जवाब नहीं आ रहे, और मारेंगे उनको। इसके बाद फरिश्ते मैयत को लोहे के गुर्जों से मारना शुरू करेंगे। क़यामत तक वो ये सज़ा भुगतता रहेगा। तो बरज़ख के बाद आखिरत में भी कुरान मजीद से एराज़ की सज़ा भुगतनी होगी, और वो और ज़्यादा शदीद और अलमनाक होगी। पहली सज़ा तो ये है कि आखिरत में सबसे पहली सज़ा होगी कि उसे कब्र से अंधा करके उठाया जाएगा। सूरह तहा की आयत है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्नहु लहु मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जो शख़्स मेरे ज़िक्र कुरान से मुँह मोड़ेगा, उसके लिए दुनिया की ज़िंदगी तकलीफ़ देह होगी, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएँगे। उसको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा होगा। वो अंधेरे में ठोकरें खा रहा होगा, लोग उसे रौंदते हुए गुज़र जा रहे होंगे। दूसरी सज़ा ये है, कुरान मजीद से एराज़ बरतने वालों को दूसरी सज़ा ये दी जाएगी कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ इस्तिग़ासा दायर फ़रमाएँगे, मुकद्दमा दायर करेंगे। और सूरह अल फुरक़ान की आयत नंबर 30 में वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हादल कुरआन महजूरा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ऐ मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने कुरान मजीद को छोड़ दिया था। मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। हम आँखें बंद करके कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन हमारी सिफ़ारिश करेंगे, चाहे हम कुरान पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं, चाहे हम अपने बच्चों को दीन सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, उनको अदब-आदाब सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में, अच्छा या बुरा, हमारा अकीदा ये है कि बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफ़ारिश करेंगे। तो फिर ये आयत फिर किन लोगों के बारे में? मेरी कौम ने, इन्न कौमी, मेरी कौम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम तो उम्मत मुस्लिमा ही है ना। अगर हम कुरान को छोड़ देंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफ़ारिश नहीं करेंगे, बल्कि हमारे खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। ये हम नहीं कह रहे, कुरान पाक की आयत कह रही है। तीसरी सज़ा, कुरान मजीद से एराज़ की सज़ा ये होगी, खुद कुरान मजीद ऐसे लोगों के खिलाफ गवाही देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान हुज्जतन लक औ अलैक, क़यामत के दिन It कुरान मजीद depends. तेरे हक़ में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा। तो फरमाया, जिस आदमी के खिलाफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकदमा दायर करे, और जिसकी गवाही खुद कुरान मजीद अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा, फिर उसे कौन-सी ज़मीन पनाह देगी और कौन-सा आसमान उसकी मदद करेगा। चौथी सज़ा, जिसे जहन्नुम के शदीद तरीन अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। सूरह अल जिन में है आयत नंबर 17, वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही यसलुकहु अज़ाबन सअदा। जो शख़्स अपने रब के ज़िक्र से एराज़ बरतेगा, अल्लाह ताला उसे शदीद तरीन अज़ाब में मुब्तला करेगा। ये है सज़ा कुरान मजीद से एराज़ और गफ़लत बरतने की, दुनिया में, कब्र की ज़िंदगी में और आखिरत में। ये हमें बात फ़रामोश हरगिज़ नहीं करनी चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत करने और उस पर अमल करने के जिस तरह के भी फ़ज़ाइल और फ़वाइद बयान किए गए हैं, इससे एराज़ और गफ़लत की सज़ा भी उसी कदर शदीद है। लिहाज़ा हमें बहुत कोशिश करनी है कि हम इससे अपने ताल्लुक को मज़बूत करें। अब देखिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुछ लोग अल्लाह के घर यानी मस्जिद में जमा होकर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और आपस में एक-दूसरे से पढ़ते-पढ़ाते हैं, तो उन पर सकीनत नाज़िल होती है। अल्लाह की रहमत उन्हें ढाँप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला उनका ज़िक्र उनके पास करते हैं, जो उसके पास है, यानी फरिश्तों के दरमियान। और याद रखो, जिस शख़्स को उसके अमल ने पीछे छोड़ दिया, उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकेगा। इसी तरह तालिब इल्म, जो कुरान का इल्म हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुबारक हो तालिब इल्म को। तालिब इल्म को फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं, फिर वो एक-दूसरे पर सवार हो जाते हैं, हत्ता कि आसमाने दुनिया तक पहुँच जाते हैं। फरिश्ते तालिब इल्म से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि जो इल्म तालिब इल्म हासिल करता है, फरिश्ते उस इल्म से मोहब्बत करते हैं। तो उस इल्म की वजह से वो इससे मोहब्बत करते हैं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, हम सब लोग यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि हम लोग अपने लिए कुरान की एक क्लास का आगाज़ कर रहे हैं, और हम आप सबको सबको दावत देना चाहते हैं कि आप उस क्लास में आएँ,
कुरान मजीद को पढ़ें, समझें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें और ये सारे जितने फ़ज़ाइल अहादीस में और कुरान पाक में बयान किए गए, हम उससे फ़ायदा उठा सकें। हमें भी अल्लाह ताला कहें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि ये अहलुल कुरान है, ये अहलुल इल्म है, ये अहलुल जन्नत है, ये अहलुत तक़वा है। अल्लाह ताला हम सबके भी दर्जात बुलंद करे। और इस क्लास के लिए आप लोगों को हुमा टीचर जो है वो सारी डिटेल्स बता देंगी और बाकी का भी सारा काम हम समझा देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे से इस क्लास को बाकायदा हम शुरू कर देंगे। तो 1 घंटे की क्लास होगी इंशाअल्लाह ताला और बहुत आसान होगी, आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, वो टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसके प्रॉब्लम को हम किसी भी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि लड़कियाँ भी आसानी के साथ इस क्लास को जॉइन कर सकें, जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, अपनी तालीम भी जारी रख सकें और साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा करके हम कुरान पाक को भी समझेंगे और इसको भी अपनी ज़िंदगी में लाएँगे। और जो लोग इम्तिहान देना चाहेंगे, उनके लिए इम्तिहान की ऑप्शन है, वो इम्तिहान दे सकते हैं। जो लोग इम्तिहान नहीं देना चाहते, वो लोग इसको एज़ अ लिसनर भी सुन सकते हैं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।